Okay, so yesterday we have started with your new chapter, and this is basically your chapter number 5, not chapter number 4. एक मिनट, किसका हो जा रहा है? हाँ. So chapter number 4 we have seen the trade cycle. Chapter number 1 was on the macroeconomics, and then the second one was on the, I think, concept of national income. That part we have seen, and then third था तुम लोगों का, नहीं, एक मिनट रुको, चलो एक मिनट. Circular flow of income. कैसा वाला था? Circular flow of income and third chapter national income. हाँ, करेक्ट करेक्ट. एंड उसके बाद में था ट्रेड साइकिल, है ना? एंड देन this one, aggregate demand and aggregate supply. So this is your actually chapter number 5. And this PDF I have taken it from the MCOM's textbook. Okay. तो ये बेसिकली एमकॉम के टेक्स्ट बुक का है, ये वाले जो मैं तुम लोग को इस चैप्टर का जो डिटेल दे रही हूँ, सेम एमकॉम के टेक्स्ट बुक में इट इज़ योर फोर्थ चैप्टर. Okay, that's what I told you. Like this chapter will be there in your MCOM also as well. You will going to study it in your SY BAF also. तो इसके लिए ठीक से समझो, बिकॉज अगर आप लोग फर्दर स्टडीज का प्लान करोगे तो उस टाइम पे भी ये आएगा ही आएगा, तो आपको समझ के लेना है. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड हियर, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, नॉट ओनली एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन. एकदम ठीक से तो ये आगे जाके आपको आने ही वाला है. एमकॉम में, एमकॉम के पार्ट 1 में रहेगा ये. Okay. So what we have seen, aggregate demand function, we have seen it has been given by the Keynes, and according to Keynes in his book, that is General Theory of Employment, Interest and Money, which he was published in 1936, he has explained that the country in the short run period, or we can say in the short run equilibrium, the country has to go with any one of the problem. Like either country has to face unemployment, or they have to face the inflation. Okay, so that was the point of view. And aggregate demand function, and for explaining all this part, he has given you aggregate demand function and aggregate supply function. Then we have said, see this point, these questions, this question answer we are basically studying from the point of view of suppliers. Okay, ये supplier के point of view से है, so entrepreneur के point of view से है. So entrepreneur के point of view से aggregate demand function, what is that shows? Basically aggregate demand function is basically shows the amount of money, the producer, or we can say the entrepreneur, is expecting after the sale of output. ओके, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, लाइक आफ्टर सेलिंग द आउटपुट. तो यहाँ पे व्हाट वी कैन से कि ही इज एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट, उसका कितना प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट वी कैन से. यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग भी समझाया था, मीनिंग यहाँ पे लिखा होगा. हाँ, सी द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन refers to the amount of money which the entrepreneur expect to receive from the sale of output produce at a particular level of employment. ठीक है, मतलब वो जो भी वहाँ पे किसी भी रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करता है, तो वो कितना एक्सपेक्ट करता है आउटपुट को सेल करने के बाद, कितना उसका अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा. बट अगेन द सेम थिंग इज विद द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ऑल्सो. एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन का भी मीनिंग वही कुछ बताता है. क्या था देखो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन का मीनिंग, द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और वी कैन से द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज अ शेड्यूल ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोसीड. दोनों में डिफरेंस क्या है कि देयर दे हैव नॉट गिवन द मिनिमम, बट हियर दे हैव गिवन द minimum amount of proceed required to induce entrepreneur to provide varying amounts of output and employment. In other words, the aggregate supply curve shows the cost of producing any given level of output, that is the minimum received, which must be obtained if that level of output is to be obtained. मतलब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई, व्हेन द एंटरप्रेन्योर विल गो इन टू सप्लाई द कमोडिटी, when he will going to supply the commodity, when whatever whatever additional production he is doing, या फिर कोई एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो करता है, तो उसके बाद में उसको कितना मिनिमम अमाउंट आता है आफ्टर सेलिंग दैट आउटपुट. तो उसके मिनिमम अमाउंट में क्या रहेगा, उसके मिनिमम अमाउंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी वो कवर करेगा. विद दैट ही विल गोइंग टू एक्सपेक्ट एटलीस्ट द नॉर्मल प्रॉफिट, and if he will going to get that much kind of a amount of money, then only he will going to supply the commodity. ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्रीगेट डिमांड में वो अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से डिसाइड करेगा कि उतना जितना वो एडिशनल प्रोडक्शन करता जाएगा, तो उसको आउटपुट उसको कितना मैक्सिमम अमाउंट मिलना चाहिए. और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई में क्या रहता है कि उसको एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ में
कितना मिनिमम अमाउंट मिलेगा जिसकी वजह से वो सप्लाई करने के लिए मोटिवेट होता रहेगा. Is this clear to you, student, the difference between aggregate demand and aggregate supply? Yes, this one is clear. Yes or no? Yes, ma'am. हाँ, लेकिन अभी दोनों का ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव सेम है, तो फिर भी ये वाला एग्रीगेट डिमांड क्यों ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग वाला ये शेप में, एंड देन व्हाई दिस एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज इन द अदर वे. तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ये दिस इज एक्चुअली स्लोपिंग अपवर्ड, इवन द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज स्लोपिंग अपवर्ड. लेकिन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में क्या कहा है कि एज वी विल गोइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, और उसको जैसे रियल इनकम के हिसाब से कि जैसे तुम लोग ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से द इनकम ऑफ द पीपल विल गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज दे विल गोइंग टू गेट द एम्प्लॉयमेंट. सो एज द इनकम विल गोइंग टू इंक्रीज, so there are chances that the people demand or the consumption will not going to increase as per this rate. है ना, होता है या नहीं स्टूडेंट? जितना अपना इनकम बढ़ता है उतना ही हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ता है, उससे थोड़ा कम ही बढ़ता है कंजम्पशन अपना. क्योंकि भले तुम्हारा पहले मतलब व्हाट वी कैन से कि पहले इनकम इतना नहीं था तो देयर वर सो मेनी नीड्स व्हिच नीड टू गेट सेटिस्फाइड, बट द मोमेंट व्हेन योर इनकम विल गोइंग टू गेट इंक्रीजिंग, तो तुम्हारा हर कोई जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं. एंड आफ्टर दैट पॉइंट ऑल्सो, आफ्टर सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑल्सो, अगर इनकम बढ़ता ही जाता है तो उस रेट पे तुम्हारा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा. ओके, सो कंजम्पशन हमेशा कैसे रहता है, एक सर्टेन टाइम पे इट विल बी गोइंग टू इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट विद द इनकम, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट विल गोइंग टू डिमिनिश द एज एन विद द कंपेयर विद द इंक्रीजिंग रेट ऑफ इनकम. तो वो डिमिनिशिंग होता है, इसके लिए आप लोग नोट करिए कि स्टार्टिंग में इट इज इंक्रीजिंग बट आफ्टर सर्टेन टाइम दैट स्लोप इज शोइंग द डिमिनिशिंग कर्व, मतलब थोड़ा नीचे झुकता हुआ कर्व आ रहा है. लेकिन एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई में जैसे वहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात है, सो प्रोडक्शन ऑब्वियसली आज जीरो लेवल से वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. सो जितना वो प्रोडक्शन ज़्यादा ज़्यादा करता जाएगा उतना उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाएगा कि मुझे मिनिमम इतना इनकम तो आना चाहिए. वाई इट इज सो, बिकॉज वो जितना ज़्यादा आउटपुट कर रहा है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका एक मिनट, हाँ, if his cost of production is increasing, then definitely what will going to happen here? The aggregate supply will going to increase. लेकिन यहाँ पे after a certain time it has become vertical. अभी आप बोलोगे मैम ये बीच में से ऐसा क्यों ऐसा straight हो गया? Why it has become vertical now? ये vertical क्यों हो गया? Because here we reach towards the point of full employment. अभी ये फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट मतलब वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी दैट वी हैव यूटिलाइज इट. उसके बाद में हम किसी रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगे. तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे मतलब हम लोग इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? समझा आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सी. ओके, गुलाब शाह फुल फुल एकदम एकदम नींद में आ. यस सैयद गुलाब शाह, वी कैन सी यू. ओके, ये हो गया अपना एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन के बारे में. देन ये तीन, हाँ अच्छा, टेक्निकल कंडीशन में आपको बताती हूँ. इफ यू अज्यूम दिस टेक्निकल कंडीशन एज गिवन, थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व आर: so long as marginal costs are positive, the aggregate supply curve will slope upward as output increases. मतलब क्या होता है यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पॉजिटिव. मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है कि एडिशनल. ठीक है, तो जैसे एडिशनल कॉस्ट वहाँ पे बढ़ता जाएगा वो पॉजिटिव होता जाएगा, सो एग्रीगेट सप्लाई को भी हमेशा अपवर्ड ही स्लोप करेगा, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट विल गोइंग टू इंडिकेट दैट वी हैव एडेड द रॉ मटेरियल और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है करके. ओके, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैंने आपको बोला कि जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वो एंटरप्रेन्योर का एक्सपेक्टेशन बढ़ता रहेगा टू गेट द अमाउंट ऑफ मनी. The next one here, as output increases, if less efficient factors of production are to be employed or bottlenecks are encountered, diminishing return will set in and aggregate supply curve will start rising more rapidly. हाँ, मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, इफ लेस एफिशिएंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर टू बी एम्प्लॉयड, तो उसके बाद में क्या होता है
कि जो तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई है वो और ज़्यादा रैपिडली राइज होता है। क्यों ज़्यादा रैपिडली राइज होता है? लेस एफिशिएंट फैक्टर है। लेस एफिशिएंट फैक्टर है ऑब्वियसली, मतलब वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है प्रोडक्शन बनाने के लिए। ओके, सो एज योर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर योर एग्रीगेट सप्लाई विल गोइंग टू राइज मोर रैपिडली। मतलब ये सिचुएशन पे अगर आप यहाँ से नोट करोगे आफ्टर दिस पॉइंट, तो यहाँ पे ये मोर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। ये मोर रैपिडली क्यों इंक्रीज हो रहा है कि शायद जो तुम्हारा एक पर्टिकुलर अमाउंट तक का प्रोडक्शन था ना, तो यहाँ तक सारे लोग एकदम बहुत मेहनत से और जिसका जितना एबिलिटी था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा था। लेकिन उसके बाद में जैसे हम लोग एम्प्लॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका इतना ज़रूरत नहीं रहता है, मतलब वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते प्रोडक्शन में। इसके लिए वो यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है आपका वो मोर रैपिडली इंक्रीज होता है। सी एज वी हैव सीन, तुम लोगों ने अगर एक एग्जाम्पल कभी पढ़ा रहेगा, और ये जनरली आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ा ही रहेगा एग्रीकल्चर के बारे में, एंड दिस इज कॉल्ड आई रियली डोंट रिमेम्बर व्हाट इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आई थिंक सो। सो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मतलब ज़रूरत नहीं वो एम्प्लॉयमेंट का, फिर भी हम लोग एम्प्लॉय करते हैं। जैसे कि एक 1 एकड़ ऑफ लैंड है, सो 1 एकड़ ऑफ लैंड के लिए 20 लेबर्स विल बी सफिशिएंट वो लैंड के ऊपर काम करने के लिए। बट फिर भी तुम लोग 20 लेबर की जगह पे तुम लोग वहाँ पे 5 लेबर्स और ऐड करते हो। सो 1 एकड़ लैंड पे 20 लेबर एकदम अच्छे से काम कर सकते हैं, बराबर जितना प्रोडक्शन आना चाहिए वो लैंड में उतना प्रोडक्शन वो लोग देते हैं। लेकिन जब तुम लोग 5 लेबर्स को ऐड करोगे, तो तुम्हारे प्रोडक्शन में कुछ इंक्रीज नहीं होने वाला है। जो 20 लेबर्स ने किया था उतना ही प्रोडक्शन आने वाला है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस 5 लेबर्स योर कॉस्ट विल गोइंग टू इंक्रीज, सो दैट इज कॉल्ड दैट 5 लेबर्स हैव नॉट contributed much in the production, so that time we are calling it as an disguise unemployment। ठीक है, तो वैसा सिचुएशन यहाँ पे आ जाता है कि ज़्यादा जितना ज़रूरत नहीं, बट फिर भी हम लोग लेबर्स को लेते हैं करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, और इसके लिए एग्रीगेट सप्लाई इज राइजिंग more rapidly. At full employment, output YF. Now they are talking about this point. At full employment, output YF, any increase in the cost cannot result in any extra output and employment, and therefore the aggregate supply curve becomes vertical in shape from the point Z corresponding to the level of full employment output YF। मतलब ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे भले ही कितना भी एडिशनल व्हाट वी कैन से इनपुट लेके आओ और रॉ मटेरियल लेके आओ, लेकिन इसके बाद में प्रोडक्शन अभी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। उसका उतना कैपेसिटी है, उतना ही वो मतलब उतना ही कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है करके। सो देयरफॉर वी हैव रिच टुवर्ड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने बोला कि पूरे रिसोर्सेज को, जो जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थे दैट वी हैव फुल्ली यूटिलाइज, एंड आफ्टर दैट वी विल नॉट गोइंग टू हैव इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। अगर तुम ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉय करते जाओगे तो जस्ट तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, but your output will not going to increase. So therefore at this point, after the Z point, it will going to become the vertical straight line here. समझा स्टूडेंट ने आपको एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम? यस। Yes, ma'am. Yes. अभी देखो, अभी नेक्स्ट से डिटर्मिनेशन ऑफ रियल इनकम। देखो इसको है ना, रियल इनकम मतलब आप एक ध्यान में दो, वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिव डिमांड नाउ। आपको ये क्वेश्चन जनरली आता है कि व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। सो इफेक्टिव डिमांड के बारे में हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ रियल इनकम। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल इनकम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट where the aggregate demand function equals the aggregate supply function। देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल इनकम, इसका मतलब है इफेक्टिव डिमांड हमें कहाँ पे मिलता है। सो इफेक्टिव डिमांड वी विल गोइंग टू डिटरमाइन एट द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन विल इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। अभी ये दोनों जो कर्व है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ये दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ई पॉइंट पे। सो दिस ई पॉइंट विल बी कॉल्ड एज योर effective demand point। This E point is indicating your real income, that is up to Y। Okay, so this point is called the effective demand। At this point the अभी ये point पे क्या होता है? At this point the entrepreneurs earns normal profit, thus the equilibrium level of real income is determined by the intersection between the aggregate demand function and the aggregate supply function। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि
देखो एग्रीगेट डिमांड इंडिकेट करता है कि मुझे मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलना चाहिए, ये एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करता है, और एग्रीगेट सप्लाई में उसको मिनिमम अमाउंट कितना मिलना चाहिए वो एक्सपेक्ट करता है। जब ये दोनों पॉइंट एक साथ आ जाते हैं, सो हियर एक्चुअली इक्विलिब्रियम अराइज होता है, दैट इक्विलिब्रियम इज इंडिकेटिंग दैट एट दिस पॉइंट द एंटरप्रेन्योर विल गोइंग टू गेट द नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है ना उसको लॉस होने वाला है। सो दिस इज द परफेक्ट व्हाट वी कैन से परफेक्ट पॉइंट अप टू व्हाट द एंटरप्रेन्योर शुड प्रोड्यूस द कमोडिटी। ठीक है, इसके लिए इस पॉइंट को कहा जाता है इफेक्टिव डिमांड पॉइंट। Then this is shown in the figure 4.3, the aggregate demand curve ADF. This is your ADF. Aggregate demand curve ADF shows the receipt which entrepreneur expect to receive, and the aggregate supply curve, that is aggregate supply function, shows the receipt which they must receive if they are not to reduce output and employment। मतलब यहाँ पे है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको कितना मिलना चाहिए, और एग्रीगेट सप्लाई बता रहा है कि उसको कम से कम कितना मिलना ही, उतना अमाउंट उसको मिलना ही चाहिए। This is what they are showing here. Okay. The point E where the aggregate demand curve intersect the aggregate supply curve is called the point of effective demand. और E point को कहा जाता है कि जहाँ पे दोनों कर्व एक साथ इंटरसेक्ट होते हैं, so it is called as point of effective demand, which determines the equilibrium level of real income, so that is OY. कितना level of income हुआ वहाँ पे, OY. In other word, at point E, the proceed which the entrepreneur expect to receive is just equal to the amount which they must receive, and therefore their profit and their profits and maximize at OY level of real income. If either more or less than OY level of output are produced, the profit would be less than maximum। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि अगर OY लेवल से वो कम करेगा, मतलब तो वहाँ पे उसका प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करके रहेगा। ठीक है, लेकिन OY लेवल पे अगर वो वहाँ पे मतलब OY लेवल तक का प्रोडक्शन कर रहा है, सो ही विल गोइंग टू गेट द नॉर्मल प्रॉफिट ईयर। फॉर एग्जांपल एट लेस देन OY लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब लेस देन मतलब वहाँ पे वो कम का हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि OY इज द लेवल ऑफ आउटपुट, और अगर उससे कम कर रहे हैं, मतलब सपोज Y0 ले रहे हैं, हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एट लेस देन OY लेवल ऑफ आउटपुट aggregate demand curve ADF lies above the aggregate supply curve ASF। यस, ये बराबर है क्या नहीं स्टूडेंट, बताओ मुझे। OY लेवल पे कौन सा कर्व ऊपर है, एग्रीगेट डिमांड ऊपर आता है OY0 पे। हाँ, OY0 पे ये वाले पॉइंट पे OY0 पे कौन सा कर्व ऊपर है, एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई, बताओ मुझे। क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट, तो एग्रीगेट डिमांड क्या एक्सपेक्ट करता है, मैक्सिमम अमाउंट कितना वो एक्सपेक्ट करता है, फिर कम से कम उसको कितना मिलना चाहिए। ये कौन सा कर्व क्या इंडिकेट करता है, एग्रीगेट डिमांड क्या इंडिकेट करेगा, बताओ मुझे। मैक्सिमम में हाँ, मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम कितना एक्सपेक्ट करता है, और एग्रीगेट सप्लाई क्या इंडिकेट करता है, मिनिमम हाँ मिनिमम, कम से कम। अमाउंट। यस, तो ये पॉइंट पे क्या होता है Y0 पे कि मैक्सिमम अमाउंट वाला जो कर्व है इट इज स्टिल एट अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई। इट मींस व्हाट हियर, उसको यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट मिलने वाला है, देयरफॉर ही विल बी एट द एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ही विल बी एट द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, उसको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ये हो गया। हाँ, therefore entrepreneur expect to receive abnormal, hence they will be induced to increase the level of in output, और यहाँ पे उसको क्या मिलता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है करके वो खुश होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपना आउटपुट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, कि वो और प्रोडक्शन करता है कि चलो मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हूँ OY0 पे, तो मुझे और प्रोडक्शन करना चाहिए, सो दैट आई विल गोइंग टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट हियर। ऑन द अदर हैंड, बियॉन्ड OY लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब OY के आगे अभी, OY जो अपना यहाँ पे इक्विलिब्रियम रियल इनकम था, तो उसके आगे अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है। See, on the other hand, beyond the OY level of output, the aggregate demand curve lies below the aggregate supply curve. Am I right or not, student? YF पे क्या हो रहा है, देखो एग्रीगेट डिमांड नीचे है, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे आया है, यहाँ पे ऊपर आया है। Yes or no? Are you able to see here? Yes, student? यस मैम। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि मिनिमम वाला ऊपर है, और जितना वो मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहा है वो नीचे आ गया है। तो व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग, ठीक है।
So it indicates that aggregate demand curve lies below the aggregate supply curve. That is, the sale proceed expected are less than the minimum sale proceed necessary. Since the cost of production incurred will not be recovered, they will reduce the output. Thus, E is the point of equilibrium and OY is the equilibrium level of output or real income. तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको जो मतलब वो एक्सपेक्ट करते कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, वो तो उनको मिलता नहीं है, उल्टा उनका मिनिमम वाला ही वहाँ पे आगे चला जाता है। तो उसके लिए उनको यहाँ पे कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। सो इट्स अ वाइज डिसीजन अगर वो वहाँ पे थोड़ा अपना प्रोडक्शन कम करके ओवाई लेवल तक लेके आए, विच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ही विल गोइंग टू अर्न द नॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो उसको यहाँ पे पैसा मिनिमम मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसका मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे मिलता नहीं है, इसके लिए वो फिर से अपना प्रोडक्शन कम कर देता है। ठीक है ना स्टूडेंट, आ रहे हैं ना समझ में कैसा ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है करके? यस। Yes, ma'am. The equilibrium level of output real income can be attained at any level of employment. That is, the equilibrium level of output may be or may not be the point of full employment equilibrium. In our figure 4.3, OYF is the level of full employment because at that level of employment, the aggregate supply curve, that is ASF, has become vertical in shape. ठीक है, उन्होंने OY का बहुत बताया यहाँ पे। OY, हाँ वो OYF का उन्होंने बताया, has become vertical in shape. Hence, the equilibrium level of output OY is described as less than full employment, less than full employment output equilibrium or underemployment output equilibrium, because at OY level of output, some men are unemployed. According to Keynes, aggregate supply and aggregate demand curve will intersect at a point less than full employment because investment demand will be inadequate to fill the gap between income and consumption. तो उन्होंने यहाँ पे क्या इंडिकेट किया है कि वी ऑलवेज से द इकोनॉमी शुड बी इन द इक्विलिब्रियम, और हमेशा बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए इकोनॉमी में, लेकिन उन्होंने केन्स ने यहाँ पे क्या बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट विल नॉट गोइंग टू गिव द प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर। तो इसके लिए टू कम विद द इक्विलिब्रियम लेवल, और वी कैन से टू अचीव द इफेक्टिव डिमांड, हम लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयड रखना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? सो कुछ लोगों का मतलब व्हाट वी कैन से रिसोर्सेज जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम लोग को एम्प्लॉय करना नहीं पड़ेगा। सो एट दिस पॉइंट इज इंडिकेटिंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी देयर। देखिए यहाँ इफेक्टिव पॉइंट पे द कंट्री हैज टू फेस द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, मतलब इट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेगा, देखो वाई से लेके वाई एफ तक का डिफरेंस रहेगा, इतने लोगों मतलब इतना वो लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करेंगे। ओके, in order to increase the output and employment we need either to lower the aggregate supply curve or to raise the aggregate demand curve. The aggregate supply curve can be lowered by increasing the productivity, which is a long run phenomena. देखो वो क्यों ऐसा बताता है कि शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में तुम लोग वो सिचुएशन लेके आ सकते हो। Since Keynes is concerned with the short run, assume aggregate supply function to be given because it depends on the technical condition of production, the availability of raw material, machinery and equipment, etc., which do not change in the short run. Thus, in the short run, output and employment can be increased by raising aggregate demand function or curve. ये रहने दो, अभी ये तुम लोग को नहीं इतना पढ़ना है। तो अभी आपको ये डायग्राम के थ्रू क्या समझा कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, अभी एक रिवीजन जैसा लेते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई एंड व्हाट पॉइंट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड पॉइंट। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो इफेक्टिव डिमांड पॉइंट है ये कौन से इकोनॉमिक्स ने बनाया है? बताओ मुझे, कौन से इकोनॉमिक्स का थियरी का पॉइंट? केन्स का, वेरी गुड। केन्स ने ये कौन से बुक में लिखा है उसके, बताओ स्टूडेंट। General theory. theory of employment, income and money. या जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड इनकम, ठीक है, इसके बारे में। और ये कौन से साल में पब्लिश हुआ था स्टूडेंट? 1939. 1939. 19 13. 1936 कभी पब्लिश किया था? 1936 को। ओके, और उसके इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? जनरल थ्योरी करके। ओके, नाउ यू टेल मी, अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स जब एक्सप्लेन कर रहा है तो केन्स के अकॉर्डिंग कंट्री को कौन सी सिचुएशन को, कौन सी दो सिचुएशन को हमेशा फेस करना पड़ता है? बताओ मुझे।
क्या अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो वो दोनों सिचुएशन को एक ही साथ फेस करेगा या दोनों में से किसी एक सिचुएशन को इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है? मैम दोनों में से किसी एक को। यस, मुझे हाँ, वेरी गुड। दोनों में से किसी एक ही सिचुएशन को उनको फेस करना पड़ता है। आइदर दे हैव टू चूज द अनएम्प्लॉयमेंट और दे हैव टू चूज द इन्फ्लेशन। और केन्स ने जो इफेक्टिव डिमांड का थियोरी जो बनाया है, ये शॉर्ट रन के पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से है? लॉन्ग रन। यस, एनीवन? दिस इज बेसिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट रन। केन्स कहता है कि शॉर्ट रन में हम लोग इमीडिएटली कुछ चेंजेस कर नहीं सकते हैं, मतलब ज़्यादा कैपिटल लेके आए या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करके डिमांड को बढ़ाए, ये सब हम लोग शॉर्ट रन में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट रन में हम लोगों को ये फेस करना पड़ता है कि आइदर वी हैव टू चूज द इन्फ्लेशन और वी हैव टू चूज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो ये केन्स का थ्योरी है, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन फेनोमेना। ओके, समझा अभी आपको? ये शॉर्ट रन के Yes. बारे में बात करें, क्योंकि शॉर्ट रन में इमीडिएट चेंजेस नहीं होते, इसके लिए ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस वी कैन नॉट क्रिएट इन शॉर्ट रन। ओके, देन उसके बाद में अभी आप लोग मुझे बताओ कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ये क्या है, क्या इंडिकेट करता है? आपके वर्ड में बताओ, मुझे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या इंडिकेट करता है? अच्छा, पहले ये बताओ, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये जो एक दो पॉइंट है, वो इस थ्योरी में कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं या फिर एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं? मैम एंटरप्रेन्योर। यस, वेरी गुड, एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं। एंड देन एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि एंटरप्रेन्योर क्या एक्सपेक्ट करता है? अमाउंट ऑफ मनी। maximum money. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर द सेल ऑफ आउटपुट, ये वो एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, मतलब जितना वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता जाएगा तो वो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेक्ट करता है, उसके बारे में है। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओ, एग्रीगेट सप्लाई किसके बारे क्या इंडिकेट करता है एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से? Minimum amount of money. मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी। मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी। अभी आप लोग मुझे बताओ, ये दोनों कर्व में से एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों कर्व में से कौन सा कर्व डिमिनिशिंग रेट दिखाता है आपके सर्टेन पॉइंट? एग्रीगेट डिमांड कर्व मैम। हाँ, वेरी गुड, एग्रीगेट डिमांड कर्व डिमिनिशिंग कर्व दिखाता है। और एग्रीगेट सप्लाई कैसे रहता है? इट इज कंटिन्यूअसली स्लोपिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड मैम। यस, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड। ठीक है, ये हो गया। अभी नाउ यू टेल मी दिस थिंग, what is when we are saying we have achieved the equilibrium point, or we can say which point is called as an effective demand? बताओ मुझे, कौन से पॉइंट को इफेक्टिव डिमांड पॉइंट कहा जाता है? कौन सा सिचुएशन? मैम एट द पॉइंट वेयर द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन आर क्रॉस ईच अदर। Yes, intersecting each other. So this point will be your effective demand point. Very good. Yes. अभी चलो, ये इफेक्टिव डिमांड पॉइंट के बाद में फिर से अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, फिर से अगर एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन करेगा तो क्या सिचुएशन आएगा इकोनॉमी में? बताओ, what situation will going to come in the economy? Ma'am, aggregate supply curve will be increased and aggregate demand function will be decreased. Yes, aggregate supply will increase and aggregate demand will going to fall here. तो यहाँ पे मतलब जो एंटरप्रेन्योर रहेगा वो प्रॉफिट में रहेगा या नहीं रहेगा? लॉस मैम। Lost, ma'am. रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है उसका स्लोप कैसे हो जाएगा? Upward, ma'am. हाँ, upward रहेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा? Curve, ma'am. मैक्सिमम। नहीं नहीं नहीं, देखो ये वाला है ना, इट विल गोइंग टू बिकम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। Vertical. Yes, it will going to become vertical straight line and that is called your full employment situation. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को फिर अभी तो ये अच्छा सिचुएशन है ना कि बाबा कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, सिचुएशन तो अच्छा ही है, भले वहाँ पे लॉस में है, बट यहाँ पे वी आर थिंकिंग ऑल दिस फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है क्या फुल एम्प्लॉयमेंट है करके इकोनॉमी में? नहीं, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा? प्रॉफिट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, उससे कम प्रोडक्शन करेगा
or again he will come towards the OY point. Okay, student. So this is what your effective demand point. I think you all have understood very well. Yes, student, all of you, but only 3-4 students were giving me answer. बाकी लोग नहीं बता रहे थे. लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि सबको समझ में आ गया. Yes. Yes or no? Yes, ma'am. चलो अब Yes, ma'am. यस अब एकदम सिंपल वाला है ये वाला, एक फटाफट मतलब एक रीड करने के बाद भी आपको आ जाएगा. देन दिस चैप्टर विल गोइंग टू गेट ओवर बिकॉज ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है ना, ये तुम लोग को इसमें एमकॉम में है, अभी नहीं है तुम लोग को, तो अपने को बस यही देखना है डिटर्मिनेंट्स. सी डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन. एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ध्यान में रखो, यहाँ पे वो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन कर रहा है एंटरप्रेनर की उसको कितना मिलना चाहिए करके मैक्सिमम अमाउंट. ओके, तो हम लोग उसके बारे में बात करें कि वो क्यों ऐसा एक्सपेक्ट करता है. सी according to Keynes general theory, real income is determined by the aggregate demand which depends on the propensity to consume and the amount of investment at a given time. मतलब वो यहाँ पे that aggregate demand will be depend upon propensity to consume. मतलब लोगों ने मेन तो यहाँ पे कंजम्पशन करना चाहिए, and if they will going to consume then only the producer or we can say the entrepreneur will going to do the investment. Okay, the essence of Keynes theory is found in his analysis of the aggregate demand function which is explained in the chart 4.1. The chart brings out determinants of aggregate demand. देखो एग्रीगेट डिमांड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन में. नाउ हियर वी विल नॉट टॉक अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन. तो एग्रीगेट डिमांड किसके ऊपर डिपेंड होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लोगों का इनकम कितना है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब उनका कंजम्पशन करने का लेवल कितना है. एंड इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वन इज एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब जो कैपिटल वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे उनको कितना एडिशनल प्रोडक्शन मिलता है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है. सो दिस इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. So chapter 4.1 brings out the important determinants of aggregate demand. This is explained below. The real income is determined by the interaction of aggregate demand function and the aggregate supply function. Assuming aggregate supply function is given, according to Keynes general theory, real income is determined by the aggregate demand which in turn depends on the consumption expenditure, investment expenditure and government expenditure. The consumption expenditure depends on the size of income and the propensity to consume. The investment expenditure depends on the rate of interest and marginal efficiency of capital, and government expenditure is considered autonomous. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को उन्होंने क्यों ऑटोनॉमस यहाँ पे कंसिडर किया है? बिकॉज डिपेंड कि कहाँ पे लगता है गवर्नमेंट को कि मुझे कहाँ पे चेंजेस करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस करेगा. ठीक है, तो वो किसी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट नहीं. अगर उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मतलब पीपल डोंट हैव इनकम, तो इसके लिए वो लोग कंज्यूम नहीं करे, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंडिचर करेगा कि लोगों का सैलरी बढ़ा देगा. सो दैट देयरफॉर वी आर सेइंग इट इज कंप्लीटली ऑटोनॉमस. वो पूरा डिसीजन उनके ऊपर रहता है. सी if the propensity to consume remain unchanged, output and real income will vary directly with the investment. Investment tend to rise either with a fall in the rate of interest or a rise in the marginal efficiency of capital or both. In an open economy, aggregate demand, that is total demand for domestic output at a given level of prices, is made up of four components: consumption spending by household, investment spending, government spending and the net export. उन्होंने कहा है कि जनरली जो अपना एग्रीगेट डिमांड रहता है वो ये 4 पॉइंट पे डिपेंड रहता है. एक तो है कंजम्पशन. कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? स्टूडेंट बताओ मुझे. लोगों का जो कंजम्पशन करने का स्टाइल रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? क्या उनके पास होना चाहिए कंजम्पशन करने के लिए? अर्निंग कैपेसिटी. यस, वेरी गुड. Income. अर्निंग कैपेसिटी मतलब उनके पास इनकम होना चाहिए. तो जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा उसके तो कंजम्पशन बढ़ता रहेगा. एंड देन अगेन नॉट ओनली द कंजम्पशन, द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. जैसे मैंने कहा कि इनकम बढ़ता है लेकिन अगर कोई कंजूस रहेगा तो वो ज़्यादा बढ़ा हुआ इनकम भी खर्च नहीं करेगा, है ना, तो उसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत कम रहेगा. सो यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे क्या रहता है? बेसिकली व्हाट वी कैन से, सॉरी, कैपिटल इन्वेस्टेड. हाँ कैपिटल, रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्ट. हाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वो भले जितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन उसके थ्रू उसको कितना रिटर्न मिलता है वो भी इम्पोर्टेंट है. एंड इफ विल गोइंग टू गेट द गुड रिटर्न,
देन वो और कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करता जाएगा. सो इट विल डिपेंड अपॉन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है या फिर कितना रिटर्न मिल रहा है, वो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है. और द अदर वन इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. मतलब तुम लोग अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एडिशनल, तो उससे तुम्हें कितना रिटर्न मिलता है उसके अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ता जाता है और हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं. नाउ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैंने जैसे आपको बोला कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी इट विल बी टोटली ऑटोनॉमस कि गवर्नमेंट किसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं. सो गवर्नमेंट जनरली लोगों को फैसिलिटी देने के लिए, जैसे कि वो डिफेंस पे खर्चा करेगा, रोड्स पे खर्चा करेगा, उसके मेंटेनेंस पे खर्चा करेगा. ही विल गोइंग टू गिव द सैलरीज टू द एम्प्लॉयज. तो उसके थ्रू क्या करेगा, जब वो खर्चा करता है तो उसके थ्रू ही विल गोइंग टू गेट द एम्प्लॉयमेंट, ही विल गोइंग टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आल्सो फॉर द पीपल, and through that the people will going to earn the income. So government spending will also going to give the income to the people, and as per that the aggregate demand function will going to start increasing. Now the net export, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं किसी कमोडिटी का, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि प्रोडक्शन कंट्री में ज़्यादा करने से कोई लॉस नहीं है. इफ़ वी आर डूइंग द प्रोडक्शन, then the additional commodity or additional production we can supply to the foreign country, and through that also the entrepreneur can earn the income. तो यहाँ पे net export is also playing very important role when we are when we are talking about the entrepreneur's point of view aggregate demand function. तो उनका वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करता जाएगा तो उसको उसका फ़ायदा ही रहेगा. So these are all the determinants of aggregate demand here. लेकिन यहाँ पे जो आपको समझना था वो आपने समझ लिया है कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कैसे रहते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी में, वो कौन से पॉइंट का इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है. आई थिंक दैट ऑल यू हैव अंडरस्टूड वेरी नाइसली. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. अगर आपको ये अभी समझा है तो एमकॉम में कोई टेंशन नहीं, आप लोग आराम से एमकॉम में ये चैप्टर जस्ट रीड करने के बाद, थोड़ा एक रिविजन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट. Okay. Okay, ma'am. Yes. Where is Kajal? Kajal, please send me the screenshot. Attendance. Yes, ma'am. Okay. Shall I end the lecture, student? Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Bye, student.